Hello friends, so this is the lecture number 2 for the chapter limits. Okay, in previous lectures we have seen some basic example based on the limits, very basic example. We have started with the basic concept. In case of limit, in first lecture we have started with the basic concept, means what do you understand by limits that we have seen. एक बार फिर से आपको बताता हूँ, जब आप ऐसी टर्म लिखते हो दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर और इसका कुछ वैल्यू निकालना है आपको, राइट. इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन दैट f of x, लेट्स से f of x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर. सो बहुत सारे लोगों को ये टर्म समझने में दिक्कत आई होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय f of x. तो सिंपल है, f of x is nothing but the function of x, any function of x. Okay, it may be x square, it may be 2x plus 3, it may be ax square plus b, whatever function involving x and some constant, that function will be called as a function of x. So same way function of x हमने assume किया था x square, तो हमने ऐसे limit x tends to 0 x square. तो इसका मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको, what is the value of limit, what is the value of limit of x square when x is approaching to 0. इसका मैंने आपको क्या पूछा था कि what is the value of this term. So it is nothing but the expected value of x square when x is approaching 0, that will be called as limit, that will be called as limit. Okay, so you can go through the previous lecture. I will give the link in the description. So today we will see some more basic example on limit. In previous lecture also I have covered very basic example in limit, but in today's lecture we will see some advanced problems or numericals based on limit. So moving on to the problems, let's see. Limit n tends to 3. Okay, inside the bracket summation r from 1 to n r square. Okay, so this is some kind of standard problem, right? No constants are there, so you should able to understand this term first. आपको ये term समझ में आनी चाहिए पहले ये क्या बोल रहा है. So it is nothing but the summation of r square and r is from 1 to n. So it is nothing but the summation of squares of the numbers. मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि how I can write the formula for the summation of squares of n numbers. So that can be written as, उसको कैसे लिखेंगे, summation r square from r is from 1 to n. So what is the formula for this? ये standard formula है, आपको याद होना चाहिए, that is equals to n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. So this is the standard formula or standard expansion of this. ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है. Now if you know this, you can just put this value in place of this expression. So what will be my problem? Limit n tends to 3. I will write this n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6. देखिए सिंपल है ये, अगर आपको एक्सपांशन आता है it is easy that you can just put the value of n as a 3. तो मैं n का वैल्यू 3 डालता हूँ, 3 plus 1 that is 4, यहाँ पे 3 into 2 6, 6 plus 1 7 divided by 6. Okay, so 3 2s are 6. So final answer will be 14. समझ में आया आपको ये प्रॉब्लम? कुछ नहीं, आपने बस ये एक्सप्रेशन ध्यान में रखना है, दैट इज द समेशन ऑफ n स्क्वायर्स ऑफ n नंबर्स विल बी n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. ठीक है. Now moving on to the next problem. लिमिट y टेंड्स टू, देखिए यहाँ पे x रहेगा, y रहेगा, z रहेगा, डरना नहीं है, बस हम फंक्शन चेंज कर रहे हैं. इट विल बी कॉल्ड एज फंक्शन ऑफ y.
इट विल बी कॉल्ड एज फंक्शन ऑफ z. ठीक है, देन इनसाइड द ब्रैकेट y स्क्वायर माइनस 3 इंटू y प्लस 2. ठीक है, so this is your problem. Now whenever in first lecture also I have explained, मैंने first lecture में भी बताया था, जब लीनियर एक्सप्रेशन है तो डरने की कोई बात ही नहीं है, 0/0 फॉर्म आएगा ही नहीं, राइट. हमें क्या करना होता है लिमिट में, जब 0/0 फॉर्म आता है उसको अवॉइड करना है, उसको क्या करना है, अवॉइड करना है. तो यहाँ पे तो लीनियर फॉर्म है, डायरेक्टली यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ y एज ए 2. उसको डायरेक्टली y का वैल्यू 2 डालेंगे. सो इट विल बी 4 माइनस 3, यहाँ पे 2 प्लस 2. ठीक है, सो इट विल बी 1 इंटू 4, सो इट विल बी 4. अगर स्टेट बोर्ड के आप बुक में देखते हो सो इसका आंसर गलत दिया है. ओके, प्लीज करेक्ट इट. प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे स्टेट बोर्ड के बुक में, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा. यहाँ पे उन्होंने थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, दैट मे बी अ प्रिंटिंग मिस्टेक आल्सो. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3, लिमिट extends to 3 inside the bracket root 6 plus x minus root 7 minus x. एक चीज ध्यान में रखिए, जब आप प्रॉब्लम नोट डाउन करते हो, जब आप पेपर सॉल्व करने वाले हो, राइट, आप प्रॉब्लम नोट डाउन करने वाले हो, तो प्रॉब्लम नोट डाउन करते वक्त आपने बहुत केयरफुली प्रॉब्लम नोट डाउन करना है. ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू लुक ट्वाइस, दो बार चेक करना है कि मैंने प्रॉब्लम सही से लिखा है कि नहीं. नहीं तो क्या होता है, बहुत बार प्लस की जगह माइनस लिख लेते हो और फिर पूरा प्रॉब्लम सही है लेकिन आपने शुरू में ही प्रॉब्लम इनिशियली गलत लिखा है. ओके, तो वेस्टेज. सो बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग द प्रॉब्लम. ना देखिए यहाँ पे, कैन आई पुट द वैल्यू ऑफ x एज ए 3, डाल के देखता हूँ कुछ 0/0 फॉर्म मिलता है क्या. नहीं, 0/0 फॉर्म मिलेगा ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो डायरेक्टली 3 डाल सकता हूँ. अभी ऊपर देखता हूँ, दैट इज 6 प्लस 3 माइनस इनसाइड द ब्रैकेट 7 माइनस 3. ओके, सो इट इज नथिंग बट 6 प्लस 3 रूट 9. इट इज रूट 4 डिवाइडेड बाय 3. सो व्हाट विल बी द आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ 9 विल बी 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इट इज 2 डिवाइडेड बाय 3. तो आंसर विल बी 1/3. ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं, डायरेक्टली वैल्यू डालने वाला प्रॉब्लम था. लेकिन इसके बाद में ऐसे प्रॉब्लम आएंगे नहीं, और एग्जाम में भी ऐसे प्रॉब्लम कोई पूछेगा नहीं. तो आपने ध्यान रखना है कि दैट प्रॉब्लम विल बी समवॉट डिफिकल्ट इन एग्जाम. ओके, नाउ ये प्रॉब्लम समझ लीजिए, आपको इजी जाएगा. लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, ऊपर क्या है, 1/x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1. ठीक है, अभी देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली x का वैल्यू 1 डालता हूँ. सो 1/1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 0 0. तो यही ध्यान में रखना होता है आपको कि लिमिट में कभी भी 0/0 फॉर्म नहीं आना चाहिए. ठीक है, 0/0 फॉर्म आता है तो आपने ऐसे फैक्टर को यहाँ से कैंसिल आउट करना है जो आंसर 0/0 फॉर्म में ला रहा है. तो वी विल डू दैट. लेट्स सी हाउ वी कैन कैंसिल दैट. यस, आई कैन रीअरेंज दिस टर्म, आई कैन रीअरेंज द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर को मैं एक बार फिर से ठीक से लिखता हूँ. ओके, हर बार लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 लिखते जाना है. लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 inside the bracket. Now I will do the cross multiplication करूंगा यहाँ पे मैं. तो 1 minus x divided by x, सॉरी नीचे डिनोमिनेटर वैसे के वैसे ही रहेगा. किसी को समझ में नहीं आया होगा तो फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं. मैंने सिर्फ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 1 वैसे के वैसे लिखा है, x इंटू 1 हो जाएगा x डिवाइडेड बाय x, राइट, और नीचे वाला वैसे का वैसा ही लिखा है. नाउ आई विल कंबाइन दीज टू टर्म्स, क्योंकि डिनोमिनेटर है, दोनों कंबाइन हो जाएगा, एक नीचे आ जाएगा. सो आई कैन राइट दिस एज लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 इनसाइड द ब्रैकेट
1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 1। अभी क्या करता हूँ देखिए, जो 1 माइनस 1 ये 0 ला रहा है मेरा, 1 माइनस 1 0 ला रहा है, राइट। ये दो टर्म्स मेरा 0 बाय 0 फॉर्म ला रहा है, तो इसको मैं कैंसिल करूंगा। कैसे कैंसिल कर सकता हूँ मैं? ऊपर से माइनस कॉमन लूंगा। अगर कि ऊपर की टर्म से मैं अगर माइनस कॉमन लेता हूँ, -1 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? साइन चेंज होगा, सिर्फ x का प्लस हो जाएगा और 1 का माइनस हो जाएगा, तो ये x माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय x इंटू x माइनस 1। So now I can cancel x minus 1, x minus 1. Easy है. So my final answer will be limit x tends to 1. हर बार लिखना है ये. Now I can put the value of x as a 1. So 1 by 1. So it is nothing but the -1. ठीक है. ऐसे ही आपको रीअरेंज करके हर बार ये फैक्टर कैंसिल आउट करना है जो 0 by 0 फॉर्म ला रहा है. क्यों? क्योंकि 0 by 0 फॉर्म आता है तो हम लिमिट डिफाइन नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखिए। किसी भी प्रॉब्लम का अगर डायरेक्टली आपने x का वैल्यू डालने के बाद 0 by 0 फॉर्म आ रहा है, तो यू हैव टू कैंसल आउट दोज फैक्टर्स विच आर मेकिंग इट 0 by 0। सो लेट्स डू अनदर प्रॉब्लम। अभी इसके बाद में ऐसे ही प्रॉब्लम रहने वाले हैं, डायरेक्टली वैल्यू पुट करने वाले प्रॉब्लम नहीं आएंगे। नाउ टू कैंसल दी 0 by 0 फैक्टर, वो फैक्टर कैंसिल करना है आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। डिस्कस द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एज x टेंड्स टू 3। ओके, व्हाट इज गिवन? f of x इज गिवन इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 3। देन यहाँ पे कुछ तो भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इक्वल्स टू एक ही जगह पे होना चाहिए, 3 लेस देन x, तो ये मे भी ऐसे हो सकता है। ओके, क्योंकि दोनों केस में इक्वल टू नहीं हो सकता है। देखिए, तो ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था कि whenever you are checking the limit of some function at x, जब आप कभी भी किसी फंक्शन का लिमिट चेक कर रहे हो at x, then you should check that left hand limit and right hand limit। अभी ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, फिर से दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हमारा x is approaching to 3, राइट। सो कहां से लेफ्ट हैंड साइड लिमिट बोलेंगे तो 2 की तरफ से 3 की तरफ जा रहा है, दिस इज दी लेफ्ट हैंड लिमिट। हमारा x 2 से 3 की तरफ जा रहा है, और राइट हैंड लिमिट हमारा x 4 से 3 की तरफ आ रहा है। एज x टेंड्स टू 3, हमने पहले ही शुरुआत में ही बोला है कि हमारा x इज टेंडिंग टू 3, मतलब अप्रोचिंग टूवर्ड 3 की तरफ बढ़ रहा है। तो इस फंक्शन में, ये जो फंक्शन दिया है, इस फंक्शन में हमारा x 2 से 3 की तरफ जा रहा है, और इस फंक्शन में हमारा x 4 से 3 की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज आवर लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज आवर राइट हैंड लिमिट। सो आई विल राइट दिस डाउन एज लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, ये फंक्शन लिखूंगा मैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस राइट हैंड लिमिट, ये फंक्शन लिखूंगा मैं, 2x plus 1. Now I will find out the value of this function. I will find out the value of this function. Linear function है, right? I can directly put the value of x as a 3. So it will be 3 डालूंगा यहाँ पे मैं, 9 plus 3 plus, गलती से भी यहाँ पे 3 -3 नहीं डालना है। ये माइनस का मतलब है कि सिर्फ हमारा x नेगेटिव डायरेक्शन से 3 की तरफ आ रहा है, ये प्लस का मीनिंग है पॉजिटिव डायरेक्शन से 3 की तरफ आ रहा है। सो द वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी 9 plus 3 plus 1, दैट इज 12 plus 1 13, और इसका वैल्यू आएगा 2 into 3, दैट इज 6 plus 1 7। अभी देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको, और एक बार बताता हूँ, जब किसी भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट
then we should write down one sentence. एक सेंटेंस लिखना बहुत जरूरी है, that the limit of f of x at that limit of f of x does not exist. Limit of f of x does not exist. जब उसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होता है. ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, लास्ट में लिखना होता है हर बार एग्जाम में. अगर आपको दो फंक्शन दिया है और इसका रेंज दिया है और ये कॉमन होगा, देखिए ये फैक्टर हमेशा कॉमन होगा, मतलब कि x टेंडिंग टू 3, और आपने चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, चेक करना है दोनों का वैल्यू इक्वल है कि नहीं है, तो यू शुड राइट डाउन वन सेंटेंस दैट लिमिट ऑफ f ऑफ x डज नॉट एक्सिस्ट. ठीक है, ऐसे जनरल प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं. 11th के लिए तो बहुत बार पूछे जाते हैं, 12th के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 11th में बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज, हाँ, ये प्रॉब्लम के पहले मैं आपको एक थ्योरम बताता हूं, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी थ्योरम एक्सप्लेन किया विद डेरिवेशन आल्सो. तो एक बार फिर से मैं उसका रिवीजन करता हूं. दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a, where is equals to n into a raised to power n minus 1, where n belongs to बोलते हैं इसको, मतलब आपका जो n है belongs to natural numbers and a is positive. Okay, so this is the conditions that should satisfy to write down this answer as like this. मैंने एक्सप्लेन किया था, डिराइव भी किया था, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. आपको बस x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n का एक्सपांशन लिखना है. एक्सपांशन कैसे लिखते हैं? एक्सपांशन इजी होता है, x माइनस a, और फिर क्या करते जाना है, x टू द पावर n लिखना है, a टू द पावर 0 लिखना है, सेकंड टर्म में x टू द पावर n माइनस 1 लिखना है, a टू द पावर 1 लिखना है, x का टर्म बढ़ाते जाना, x का टर्म कम करते जाना है, a का टर्म बढ़ाते जाना है, लास्ट में a टू द पावर n आएगा, x टू द पावर 0 आएगा. बस ये एक्सपांशन है. x माइनस a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे a का वैल्यू डाल दीजिए, आपका फाइनल आंसर यही आएगा. एक बार करके देखिए, नहीं समझ में आया तो यू कैन गो थ्रू द फर्स्ट लेक्चर एंड यू विल सी द डेरिवेशन देखोगे ना. इसके बेसिस पर ही हमें कुछ प्रॉब्लम्स करने हैं. दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 इनसाइड द ब्रैकेट x टू द पावर 7 माइनस 128 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5 माइनस 32. ओके, हमें ये प्रॉब्लम करना है अभी ना. देखिए, x टू द एक्सटेंडिंग टू 2 हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म साइड में लिख लेना है, सो दैट इट विल बी इजी टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा रिवाइज करते रहना है. इसका आंसर है n इंटू a टू पावर n माइनस 1. देखिए, अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करना है. x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n. देखिए, लेकिन दोनों इसमें देखिए, हमारा x टू द एक्सटेंडिंग टू a ये सारी जगह पे कॉमन है, तो हमारा ये तो फिक्स हो गया. हमारा ये एग्जांपल में ये क्या होना है, जब भी आप x के हायर पावर देखते हो तो आपने ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद करना है. राइट नाउ हाउ यू कैन गेट दी a क्या है मेरा और n क्या है, ये तो मिल जाएगा डायरेक्टली. ये क्या है इस प्रॉब्लम में, a इज 2, राइट, ये आपका 2 है. अभी n क्या है वो देखना पड़ेगा. लिमिट एक्सटेंड्स टू 2. देखिए, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x टू द पावर 7 माइनस a दैट इज नथिंग बट 2 टू द पावर 7. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x टू द पावर 5 2 टू द पावर 5. राइट नाउ आई नीड द डिनोमिनेटर टर्म टू मेक इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर में भी एक टर्म चाहिए, दैट इज x माइनस a, दैट इज x माइनस 2. तो दोनों के लिए भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको x माइनस 2 से मल्टीप्लाई, x माइनस 2 से डिवाइड. ठीक है, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन गिव दिस x माइनस 2 एज ए डिनोमिनेटर टू दिस टर्म.
ये x-2 जो न्यूमरेटर वाला है मैं इसको दे दूंगा एज अ डिनोमिनेटर, और ये x-2 जो डिनोमिनेटर में ये इसको दे दूंगा. सो आई कैन राइट डाउन दिस एग्जांपल एज लाइक दिस. ध्यान से देखिए, x टेंड्स टू 2. नाउ आई कैन राइट x to the power 7 minus 2 to the power 7 divided by x-2. ये हो गया मेरा x, and whole divided by limit extending to 2 x to the power 5 minus 2 to the power 5 divided by x-2. समझ में आया आप लोगों को मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं, x-2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. एक x-2 इसको लग रहा था, इसको दे दिया, x-2 इसको लग रहा था, इसको दे दिया, so that I am getting my problem in standard form. You can see this is the standard form and this is the standard form. So the numerator, in the numerator my n is 7, n 7. My a is 2. So I can write the answer for numerator as n. What is n? 7. What is a? 2. What is n minus 1? n minus 1 6. Denominator n 5. 2 to the power 5 minus 1 4. इसको सिंप्लीफाई कीजिए, राइट. 7 by 5. यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ पे पावर 4 है. कैसे करना है? यहाँ पे आएगा 2 to the power 6 minus 4, राइट. 6, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब आई विल डायरेक्टली राइट एज ए 2 square, दैट इज नथिंग बट 4. सो 7 into 4 दैट इज 28 by 5. ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए प्रॉब्लम. अगर एक प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया, यू कैन डू दी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन दी सेम वे. ठीक है ना. Moving on to the next problem, limit x tends to 5. अभी देखिए, जिनको लास्ट वाला प्रॉब्लम समझ में नहीं आया होगा वो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये थोड़ा इजी प्रॉब्लम है. x minus 5. ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा? स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा दैट लिमिट x tends to a x raised to power n minus a raised to power n divided by x minus a is equals to n into a raised to power n minus 1. This is the standard solution. ये स्टैंडर्ड है, इसका डेरिवेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में किया ना. सो यहाँ पे देखिए, जब भी आप x to the power सम हायर पावर देखते हो, x to the power 4, 5, 3, 6, तो आपने ये रिमेम्बर करना है, ये ध्यान में लाना है. तो मैं कैसे मेरे प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ? देखिए सिंपल है, x to the power n, x to the power 4. अभी सिर्फ ये जो है इसको sum to the power n, तो what is a? a is nothing but 5, तो 5 to the power sum n. तो n भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, a भी दिख रहा है. तो अभी देखिए, आप लोगों ने समझ जाना है कि सभी मेरे को a भी दिख रहा है, n भी दिख रहा है. डायरेक्टली आई कैन राइट इट एज ए 5 raised to the power 4 x minus 5. चेक कीजिएगा, 5 raised to the power 6 25 आता है. ओके ना, लिमिट. अभी किसी किसी का प्रॉब्लम हो सकता है, सर आपको डायरेक्टली कैसे समझ में आएगा 5 raised to power 4 is 625. सो डायरेक्टली नहीं समझ में आया, मुझे आइडिया मिल गया कि मेरा a क्या है, मेरा n क्या है. तो a क्या है, मतलब मेरा फिक्स यहाँ पे a आने वाला है, n मेरा जो यहाँ पे है वो भी यहाँ पे आने वाला है. मैं डायरेक्टली लिखूंगा और बाद में चेक करूंगा 5 raised to power 4 625 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. नाउ आई कैन डायरेक्टली राइट डाउन दी आंसर. डायरेक्टली मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ, क्योंकि इसमें n is equals to 4 और a is equals to 5. So my answer will be n 4 into 5 raised to power 4 minus 1, that is 4 into 5 raised to power 3, that is 4 into 125. So it is 0, 500. ओके, थोड़ा कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है कैलकुलेशन में. फाइनल आंसर ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे और एक बेस्ड एग्जाम्पल ना. हाँ देखिए क्या बोल रहा है, इफ लिमिट x टेंड्स टू 4
inside the bracket x raised to power n minus 4 raised to power n divided by x minus 4 is equals to 48, then find n। पूछा क्या है? n पूछा है, n। ठीक है, ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रॉब्लम दिया है आप लोगों को, आंसर भी दिया है और n पूछा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड I can directly write down the answer as a n into a raised to power n minus 1. n पता नहीं है, so I will write down in standard form only the answer of this। इसका डायरेक्टली मैं आंसर लिखूंगा n into a, what is a? a is 4 into n minus, sorry, to the power n minus 1 is equals to, दिया क्या है? 48। okay, so 48 now n into, so 4 raised to power n minus 1। अभी क्या करना पड़ेगा हमको? डायरेक्टली आंसर तो नहीं मिलेगा, बट वी हैव टू सी, वी हैव टू चेक बाय ट्रायल एंड एरर। सो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ n एज अ 1। 1 डाल के देखता हूँ, 4 रेस्ट टू पावर 1 आ रहा है, 48 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है? 4 ही आ रहा है। 2 डाल के देखता हूँ, 2 4 रेस्ट, यहाँ पे 0 आएगा, सॉरी। सो यहाँ पे आंसर आपका 1 आएगा। सो 2 इंटू 4 रेस्ट टू पावर n माइनस 1, 1 क्या आ रहा है? 8। अभी 3 डाल के देखता हूँ, 3 इंटू 4 रेस्ट टू पावर 2, चेक कीजिएगा, 3 इंटू 4 रेस्ट टू पावर n माइनस 1 2, मतलब 3 इंटू 16 48 आ रहा है। सो मेरा n का वैल्यू आएगा 3। सो दिस यू शुड डू बाय ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा किसी किसी प्रॉब्लम में, ओके, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना उतना आसान नहीं है। यू शुड गो बाय ट्रायल एंड एरर। आपका आंसर क्या है फिर? n इज इक्वल्स टू 3। ओके, ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी थोड़ा फास्ट चलते हैं, राइट? देखिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 इनसाइड द ब्रैकेट 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ, मैं क्यूब रूट को ऐसे लिखता हूं, 26 प्लस x रेस्ट टू द पावर 1/3 माइनस 3। क्यूब रूट दिया है, क्यूब रूट को मैंने रेस्ट टू द पावर 1/3 लिखा है। लिख सकता हूं ना मैं? यस, ऑफ कोर्स लिख सकता हूं। स्क्वायर रूट को कैसे लिखेंगे? रेस्ट टू द पावर 1/2। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट है तो उसको आप लिख सकते हो रेस्ट टू द पावर 1/2। क्यूब रूट है, रेस्ट टू द पावर 1/3। नाउ सी, इफ आई डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ x एज ए 1, देखिए मैंने फिर से गलती कर दी। मैंने बोला था आपको प्रॉब्लम लिखते टाइम यू हैव टू चेक 2x minus 2। व्हेन आई पुट द वैल्यू ऑफ x एज ए 1, यहाँ पे डालता हूं तो क्या आएगा एक्सप्रेशन? 2 minus 2, यहाँ पे 26 plus 1 27, 27 का क्यूब रूट 3 minus 3, मतलब ये 0/0 फॉर्म ला रहा है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आपको 0/0 फॉर्म दे रहा है, मीन्स यू हैव टू कैंसल द फैक्टर, कैंसल करना पड़ेगा जो 0/0 फॉर्म ला रहा है। नाउ हियर यू कैन सी इट इज अ टर्म 26 प्लस x रेस्ट टू द पावर 1/3। इसको डिनोमिनेटर में जो जीरो ला रहा है उसको कैंसिल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ये पूरी टर्म को एक अनदर वेरिएबल के टर्म में लिखता हूँ। मीन्स आई विल पुट दिस एज, पुट 26 प्लस x एज, let's say y cube, so that cube root of 26 plus x will be y। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या किया? अभी ये जो क्यूब रूट है वो निकालने के लिए मैंने यहाँ पे 26 प्लस एक्स को y क्यूब लिखा है, सो दैट क्यूब रूट ऑफ 26 प्लस एक्स आई कैन राइट डायरेक्टली एज ए y। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, एज मैं पूरा प्रॉब्लम y के टर्म में लिख रहा हूं तो ये समझना इंपॉर्टेंट है दैट हाउ यूर x is going to vary, x is tending to 1, x is tending to 1, तो y कहाँ पे जाएगा ये समझ में आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये समझ में आना चाहिए कि x 1 की तरफ जा रहा है तो y किस तरफ जा रहा है। तो x का वैल्यू 1 डाल के देखते हैं। अगर x का वैल्यू 1 डालता हूँ तो y will be y cube is equals to 27, so y is nothing but 3, y is equals to 3। मतलब जब मेरा x मूविंग टूवर्ड्स 1, मेरा y किस तरफ जाएगा? 3 की तरफ। ठीक है, तो ये चेंज करना पड़ेगा आपको प्रॉब्लम में।
जब भी आप x को y से रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे लिमिट y टेंड्स टू 3 आएगा। ये समझ में आया सब लोगों को? ओके, नाउ आई विल रीराइट दिस प्रॉब्लम एज लिमिट y टेंड्स टू 3। नाउ 2 इंटू x, x की जगह क्या आएगा अभी? y क्यूब माइनस 26 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 26 प्लस x रेस्ट टू द पावर 1/3, इसको मैं डायरेक्टली अभी y लिख सकता हूँ। ठीक है, y क्यूब अगर लिखूंगा y क्यूब रेस्ट टू पावर 1/3 कैंसल हो जाएगा, y रह जाएगा। ये हो गया आपका सिंप्लीफाई ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैं क्या करता हूं अभी, देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर पे ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर पे ध्यान दीजिए। आई एम टेकिंग टू कॉमन, ये जो दो टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों टर्म से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं। ध्यान रखिए, लिमिट y टेंड्स टू 3। अगर मैं ऊपर की टर्म से 2 कॉमन लेता हूं तो बीच में क्या बच रहा है, देखिए y क्यूब माइनस 26 और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 अगर कॉमन लिया, इसमें से 2 लिया तो -1। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको कंप्लीट ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, वही आने वाला है कि नहीं चेक कीजिए, वही आएगा, डिवाइडेड बाय y माइनस 3। नाउ आई कैन राइट दिस एज लिमिट y टेंड्स टू 3 2 inside the bracket y cube minus 26 minus 1 minus 27 inside the bracket y minus 3। अभी देखिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म था हमारा x to the power n minus a to the power n divided by x minus a, मैं उसको लिख सकता हूँ। I will write this as limit y tends to 3। 2 को मैं आउटसाइड द लिमिट भी ले सकता हूँ, राइट? I will take the 2 outside the limit, so my problem will be limit y tends to 3, यहाँ पे आएगा y क्यूब। नाउ आई कैन राइट 27 एज ए 3 क्यूब डिवाइडेड बाय y माइनस 3। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म होगा n। व्हाट इज n? ये 2 रहेगा यहाँ पे, हाँ, ये ध्यान में रखिए। n इज 3। व्हाट इज a इज ऑल्सो 3। y टेंड्स टू a रेस्ट टू द पावर n माइनस 1, n क्या है? 3 रेस्ट टू पावर 2। तो सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 3 27 27 2 54। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये प्रॉब्लम समझ में आया आप लोगों को? कुछ नहीं, शुरू में मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्यूब रूट को निकालने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे 26 प्लस एक्स को y क्यूब रखा है। रख सकते हैं आप, ऐसे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं आप। दिस इज ऑल्सो ट्रायल। फर्स्ट टाइम जब आप करोगे थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है और किसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, थोड़ा स्लो जा रहा हूँ क्योंकि शुरू में लिमिट के प्रॉब्लम समझना इम्पोर्टेंट है। बाद में एक बार आपको सारे प्रॉब्लम समझ में आए, आप फास्ट में भी जा सकते हैं ना। लिमिट z टेंड्स टू, यहाँ पे ध्यान रखिए प्रॉब्लम लिखते टाइम, limit z tends to -3, it is inside the brackets square root of z plus 6 inside divided by z। देखिए, जब भी डिनोमिनेटर में कोई सिंगल टर्म आती है मीन्स 0/0 चांसेस कम है। आई कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ z एज -3। देखते हैं, -3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय -3, 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा है, so I can directly find out the value। inside the bracket आएगा -3 plus 6, 3 divided by -3, so I can write -1 divided by √3। ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 into √3, तो एक √3 कैंसल हो जाएगा, 1/√3 1/√3। ठीक है, now moving on to the problem next। देखिए, मैथ्स में कुछ कंसेप्ट ज्यादा अप्लाई तो करने नहीं होते, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है आपको। बस प्रैक्टिस करते जाना है, अपने आप मैथ्स इजी होता चला जाएगा। z टेंड्स टू, यहाँ पे भी ध्यान रखिए -5 है, हाँ, 1/z प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय z प्लस 5।
तो डायरेक्टली वैल्यू डाल के देखते हैं क्या आ रहा है। 1/z दैट इज 1/-5 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय -5 प्लस 5। नीचे तो आपको 0 आ रहा है, ऊपर भी 0 आ रहा है। 0/0 फॉर्म है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो फैक्टर 0/0 फॉर्म ला रहा है उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंप्लीफाई दी न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं मैं 5 प्लस जेड डिवाइडेड बाय 5z z प्लस 5, राइट? सही है। लिमिट z टेंड्स टू -5 इनसाइड द ब्रैकेट 5 प्लस z, ये नीचे आएगा 5z इंटू z प्लस 5 को 5 प्लस z लिखता हूं, सो दैट कैन कैंसल दिस। सो लिमिट z टेंड्स टू -5 5z, अभी 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा है, डायरेक्टली वैल्यू डाल दीजिए। सो 1 इंटू 5 इंटू -5 दैट इज -1/25, ठीक है। ये हो गया प्रॉब्लम। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Limit extends to 3. Limit extends to 3 inside the bracket 2x square root of 2x plus 6 divided by x. Directly value डाल के देखता हूँ, so it will be root 2 into 3 that is 6 plus 6 divided by 3, so it is root 12/3. अभी देखिए एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है, अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है, कन्वेंशनल सब्जेक्टिव एग्जाम है तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू टाइप अगर क्वेश्चन आता है तो इसी आंसर को मैं अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं रूट 4 into 3 डिवाइडेड बाय 3, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 4 आउट ऑफ द 2, यहाँ पे रूट में क्या किया मैंने, 4 को आउट ऑफ द रूट निकालने के लिए उसका स्क्वायर रूट लिया 2, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं 2 डिवाइडेड बाय रूट 3। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि एमसीक्यू में किस आंसर को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एमसीक्यू में ये बहुत बार होता है कि डायरेक्टली आप जो आंसर निकाल रहे हो वो अलग फॉर्म में दिया होता है। ओके, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, अभी देखिए x raised to power -3 minus 2 raised to power -3 divided by x minus 2, कुछ भी नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रॉब्लम है, बस हमारा n का वैल्यू माइनस में है, कुछ नहीं है, जो है वो लिखना है n इंटू a raised to power n -1, और हमारा n क्या है, n यहाँ पे -3 है और ये क्या है, ये हमारा 2 है, बस। तो जैसे वैसे ही लिखना है n -3 a 2 -3 -1 हो जाएगा, बस, बाकी क्या चेंजेस। तो हमारा आ जाएगा -3 इंटू 2 -4, राइट? सो यू कैन राइट दिस प्रॉब्लम एज -3 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। इसको 2 रेज़ टू पावर देखिए कितना आता है, दैट इज नथिंग बट -3 16 आई थिंक, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। Now, limit extends to 5 x cube minus 125 divided by x to the power 5 minus 3125। देखिए ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है प्रॉब्लम, x to the power n minus a raised to power n divided by x minus a, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं, इजी है। लिमिट extends to 5 inside the bracket x cube, मैं इसको 5 क्यूब लिख सकता हूँ, इसको मैं x to the power 5 माइनस इसको 5 raised to power 5 लिख सकता हूँ, राइट? अभी जो डिनोमिनेटर टर्म मिसिंग है, डायरेक्टली आई कैन डू लाइक दिस, x to the power x minus 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, तो ये x minus 5 में इसको एज ए डिनोमिनेटर दे सकता हूँ, और ये x minus 5 में इसको डिनोमिनेटर लिख सकता हूँ। सो आई विल राइट दिस प्रॉब्लम एज लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 x to the power 3 minus 5 to the power 3 divided by x minus 5
और डिनोमिनेटर में आएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 x to the power 5 minus 5 to the power 5 divided by x minus 5. Okay, standard form. Directly you can write down the answer as a n into a raised to power n minus 1. n 3 a 5 raised to the power n minus 1, that is 2, 5 raised to power 5 4. सिंप्लीफाई कीजिए 3 by 5, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो नीचे 5 raised to power 2 रहेगा. Okay, so it is nothing but 125. So this is your answer. So we have seen some examples on our standard formula, that is limit x tends to a x raised to power n minus a raised to power n divided by x minus a is equals to n into a raised to power n minus 1. तो देखिए प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला डायरेक्टली लिखते आना चाहिए विदाउट एनी थॉट, मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. व्हाट इज द प्रॉब्लम इज लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 x raised to power 4 minus 1 divided by x minus 1 is equals to limit x tends to a x raised to power 3 minus a raised to power 3 divided by x minus a. Find the all possible values of a. Find the all possible values of a. देखिए एक तरफ आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रॉब्लम दिया है, दूसरी तरफ सिर्फ a को आपको फाइंड आउट करना है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है. सो आई कैन डायरेक्टली राइट डाउन दी आंसर फॉर दिस. मैं लिख सकता हूँ व्हाट इज अवर answer, n into a raised to power n minus 1, right? So what is the n here? What is the value of n? n क्या यहाँ पे क्या है n? 4, right? So my answer will be 4 into a. a is 1 raised to power n minus 1. 4 minus 1 is 3. So my answer will be, इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं, answer will be 4. So I can write 4 is equals to limit x tends to a inside the bracket x cube minus a cube divided by x minus a. इसका भी मैं आंसर लिख सकता हूँ, right? How can I write the answer for this? That is n. What is n? 3. What is a? a पता नहीं है. n minus 1 is 2. So now I can find out the value for a square as a square is equals to 4 by 3. Or I can write a is equals to plus minus 2 under root 3. क्या किया मैंने? स्क्वायर रूट लिया है दोनों भी साइड का, ठीक है. सो योर फाइनल आंसर विल बी a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, स्क्वायर को कन्वर्ट आप स्क्वायर रूट में जब भी करते हो तो वो वैल्यू माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ठीक है. यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग द आंसर. यू शुड राइट प्लस और माइनस. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट है. लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू x टू द पावर n माइनस n डिवाइडेड बाय x माइनस 1. देखिए अभी ये फॉर्म में दिया गया है आपको प्रॉब्लम, राइट? Now, whenever you see higher power of x square, cube, n, so you should try to formulate such problem into your standard format. हमारा standard format क्या है? x to the power n minus a to the power n divided by x minus a. x minus a तो है हमारे पास, x minus a extending to a है, मतलब इस प्रॉब्लम में इतना तो आपको समझ में आया गया, a is 1. a is 1, ठीक है. तो ये ध्यान में रखिए, ये प्रॉब्लम में हमारा ये क्या होने वाला है? 1. नाउ हाउ आई कैन रीराइट द न्यूमरेटर, इस पे ध्यान दीजिए थोड़ा. लिमिट x टेंड्स टू 1. नाउ दिस इज n एंड दीज टर्म्स आर n टर्म्स. 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितने हैं? n टर्म्स है. नाउ आई कैन सेपरेट दिस n as,
मैं ये n को कैसे लिख सकता हूं, x, ये n में से मैं एक 1 इधर दे दूंगा, प्लस आई विल राइट दिस एज x स्क्वायर माइनस 1, आई कैन राइट दिस एज x क्यूब माइनस 1, प्लस मैं ऐसे कब तक कर सकता हूं, x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, सिर्फ मैंने n को डिस्ट्रीब्यूट किया है, हर एक टर्म के लिए एक एक दिया है, मतलब n को मैंने -1 लिखा है, -1 लिखा है, -1 लिखा है, ऐसा मैं कब से कब कर सकता हूँ, n टाइम्स कर सकता हूँ, डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो देखिए आई विल गेट दी, अभी मैं थोड़ा सेपरेट करता हूँ इनको। नाउ आई कैन डिवाइड दिस x माइनस 1 टू ईच टर्म, मैं हर एक टर्म को x माइनस 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, राइट। सो पहला टर्म क्या हो जाएगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, डायरेक्टली 1 आ जाएगा, मतलब मेरा आंसर होगा पहले टर्म के लिए 1, प्लस दूसरे टर्म के लिए क्या हो जाएगा, नाउ आई कैन अप्लाई द लिमिट सेपरेटली आल्सो, थोड़ा ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और तीसरी टर्म क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। देखिए, और चौथी टर्म, ऐसे करते करते आप यहां तक पहुंच जाओगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। आप 1 को ऐसे भी लिख सकते हो, 1 स्क्वायर, 1 क्यूब, 1 रेज टू पावर n, राइट। सो यू आर गेटिंग दीज ऑल टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको ध्यान से देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल रहा है आपको, सारे टर्म्स स्टैंडर्ड फॉर्म्स में मिल रहे हैं, राइट। सो दीज आर नथिंग बट दी स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ यू कैन राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज 1 प्लस, आप इसको लिख सकते हो n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1, n क्या है 2, सो इट विल बी 2, व्हाट इज योर a क्या है 1 रेज टू पावर 1, इसका आंसर क्या आएगा 3, 1 रेज टू पावर 2। अभी इसके बीच वाली टर्म में और एक ऐड कर देता हूं, दैट इज 4, n यहाँ पे 4 होगा, 4 इंटू 1 रेज टू पावर क्यूब, ऐसे आप कहां तक लिख सकते हो, दैट इज n इंटू 1 रेज टू पावर n, राइट, लिख सकते हो आप। मतलब बीच वाली टर्म में क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1 रेज टू पावर 4। तो देखिए अभी आंसर ठीक से देखिए, इट विल बी 1 का पावर कितना भी लीजिए आप, क्या आएगा 1 ही आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, ये कहां तक जाएगा, ऐसे n तक, कहां तक जाएगा, n तक। सो दिस इज नथिंग बट दी एडिशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स, दिस इज नथिंग बट दी एडिशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स। सो यू कैन राइट दी फॉर्मूला फॉर समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स एज, क्या होता है फॉर्मूला, एडिशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझ लीजिए ठीक से, कुछ नहीं है, आपने n को डिस्ट्रीब्यूट किया है अमंग ऑल दी x, तो हर एक को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया आपने, हर एक को अलग अलग से डिवाइड कर दिया, क्योंकि प्लस है साइन, प्लस साइन है तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सबको, ओके, एंड लास्ट में आ जाएगा n, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n, यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो प्लीज रिमेंबर, थोड़ा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और इम्पोर्टेंट है। Now, moving on to the next problem. Limit x tends to 5, limit x tends to 5, x raised to power k minus 5 raised to power k divided by x minus 5 is equals to 500. Find the value of k. वही बात है, वही फॉर्मूला है, वही स्टैंडर्ड फॉर्म है। हाउ यू कैन डू इट, डायरेक्टली राउट डाउन, n की जगह सिर्फ k लिखिए अभी, इंटू 5 रेज टू पावर k माइनस 1 इज इक्वल्स टू
500। तो देखिए यहाँ पे दो जगह पे अननोन है आपका। If you want to have the value of k, find out the value of k. How you can find out? You have to do trial and error. So by putting the value of k as a 1 into 5 raised to power 1 minus 1 0, so it will be 1 only. तो नहीं आ रहा है। k is equals to 2 put करेंगे, 2 into 5 raised to power 1, so it will be 10, नहीं आ रहा है। k is equals to 3, 3 into 5 raised to power 2, 25 and 3 75, नहीं आ रहा है। k is equals to 4, 4 into 5 raised to power 3, that is 4 into 125, so is it coming 500? Yes. So your answer will be k is equals to 4. So at some point you have to do the trial and error. आपको कहीं कहीं पे trial and error करना पड़ेगा। ओके देखिए एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म पे हमने बहुत सारे प्रॉब्लम किए हैं, सो यू शुड बी फैमिलियर विद दिस। नाउ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, अभी थोड़े डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स होंगे। 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 8 माइनस 1, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1। अभी देखिए ये पूरे टर्म का पावर 8 है, ये पूरे टर्म का पावर 2 है। और देखिए ये भी आपको मतलब 1 को आप 1 रेज टू पावर 8 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, लेकिन a यहाँ पे भी a चाहिए, मतलब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 चाहिए, तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। क्योंकि हमने लिखते टाइम ही लिखा था लिमिट x टेंड्स टू a, तो यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पे नंबर चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीटली याद होना चाहिए अच्छे से, सो दैट आप गिवन प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे अच्छे से। ओके, व्हाट आई कैन डू, आई विल राइट दिस होल टर्म एज ए सिंगल टर्म, मींस लेट 1 minus x as a y, let 1 minus x as a y, so my as x tends to 0, मेरा x 0 की तरफ बढ़ रहा है तो मेरा y किस तरफ बढ़ेगा, x की जगह 0 डाल दीजिए तो y 1 की तरफ बढ़ेगा। तो मैं जैसे ही x को रिप्लेस करता हूं y से, आई शुड राइट लिमिट y टेंड्स टू 1 inside the bracket 1 minus x I can write as a y raised to power 8 minus 1 divided by y raised to power 2 minus 1। ये हो गया। अभी मैं क्या कर सकता हूं, आई एम राइटिंग दिस हियर, लिमिट y tends to 1 y raised to power 8 minus 1 divided by y raised square minus 1। इसको मैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करता हूँ y माइनस 1 से। क्यों? क्योंकि मुझे एक y माइनस 1 एज ए डिनोमिनेटर ऑफ दिस, एक y माइनस 1 एज ए डिनोमिनेटर ऑफ दिस रखना पड़ेगा। सो आई कैन राइट लिमिट y tends to 1 y raised to power 8 minus 1 divided by y minus 1, limit y tends to 1 y square minus 1 y minus 1। हो गया। नाउ आई कैन राइट द स्टैंडर्ड, डायरेक्टली मैं आंसर लिख सकता हूँ, दैट इज 8 into 1 raised to power 7 divided by 2 into 1 raised to power 1, so it is nothing but 8 by 2, that is 4। आंसर इज 4। You understood this? कुछ नहीं, बस सब्स्टिट्यूशन करना था 1 minus x का। तो जैसे कभी आप थोड़ा मिक्स टर्म देखते हो, थोड़ा डिफरेंट टर्म देखते हो, यू ट्राई टू सब्स्टिट्यूट इट विथ सिंपल टर्म। और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये ध्यान में रखिए कि जैसे ही x का वैल्यू बदल रहा था, x अप्रोचेस टू 0, तो y शुड अप्रोच टू सम अदर वैल्यू। नेक्स्ट देखिए, जितने ज्यादा प्रॉब्लम करोगे उतने ज्यादा आप कंफर्टेबल फील करोगे। क्यूब रूट ऑफ 1 plus x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus x डिवाइडेड बाय x, डिवाइडेड बाय x। यहाँ पे भी देखिए थोड़ा आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट करना पड़ सकता है। ओके, नाउ बाय डायरेक्टली पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 0 by 0 फॉर्म मिल रहा है, राइट। आई विल राइट दिस एज ए, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूं मैं, ओके, समझने में। ओके, आई विल राइट दिस एज 1 plus x raised to power 1 by 3।
क्यूब रूट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और स्क्वायर रूट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज 1 plus x raised to power 1/2. So now can I replace anything so that I will convert this into a standard form? Let's see, try it out. Okay. So what I will do, I will write this complete term as a 1 plus x as a t cube. Okay. So what I will get as x tends to 0, my t will tends to 1. ठीक है, you can see x 0 डाल दोगे तो t 1 आ जाएगा. So let's see, limit t tends to 1, अंदर आ जाएगा 1 plus x, क्यूब रूट है तो यहाँ पे सिर्फ t आएगा, माइनस यहाँ पे 1 plus x है, so I can replace 1 plus x को मैं t cube minus 1 से रिप्लेस कर सकता हूँ. ओके, so it will be t cube minus 1 raised to power 1/2 divided by x. x I can replace by t cube minus 1. थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको. So how we can do that? ये t cube प्लस प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t माइनस t raised to power 3/2 divided by t cube minus 1. Right? Now I can get the t common. t अगर मैंने कॉमन लिया ऊपर से तो ऊपर रहेगा 1 माइनस t raised to power. देखिए 3/2 minus 1, ये पावर का आपको समझ में आना चाहिए कि मैं t को कॉमन ले रहा हूं, मतलब t से डिवाइड कर रहा हूं, तो इट इज 3/2 minus 1, इट इज नथिंग बट 1/2. ओके, 1/2 divided by t cube minus 1. So now you can see, okay, what we will do, we will take the minus t as a common. तो बस साइन चेंज हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा. We are taking the minus t common, so t raised to power 1/2 minus 1 आ जाएगा. So now you can see you have converted this problem into standard form. It is x raised to power n minus 1 raised to power n. x raised to power 3 minus 1 raised to power 3 you can write. और आपको सिर्फ यहाँ पे t minus 1 दोनों के लिए डालना पड़ेगा. So इसको मैं मिटा के यही प्रॉब्लम कंटिन्यू करता हूँ. यहाँ पे I am doing the same problem. इसको अभी मैं सिर्फ ऐसे लिखता हूँ, लिमिट t tends to 1, तो माइनस t लिख दिया मैंने. ओके, नाउ t raised to power 1/2 minus 1 t cube minus 1, I am multiplying it with t minus 1 t minus 1. ठीक है, तो नाउ I can apply limit separately. t tends to 1, इसको माइनस t को मैं सेपरेटली अप्लाई करूंगा और इन मल्टीप्लाइड बाय लिमिट t tends to 1. अभी हर एक के लिए अलग अलग लिखूंगा मैं. -1 डिवाइडेड बाय t minus 1 डिवाइडेड बाय लिमिट t tends to 1. यहाँ पे लिखूंगा मैं t cube minus 1 डिवाइडेड बाय t minus 1. ओके, सो what will be the answer? Now put the values. The answer for this will be, directly you can put the value of t as a 1. So it will be -1 ये हो गया. और इन दोनों का आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? n क्या है आपका? हाफ. तो हाफ इंटू a क्या है? 1 इंटू हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ. ये क्या है? t क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई t माइनस 1, तो 3 इंटू 1 रेज टू पावर 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2. सो इट विल बी, ये क्या हो जाएगा फिर? हाफ 1 रेज टू पावर माइनस, मतलब ये ठीक है, ये 1 ही आ जाएगा. So it will be -1/6. Okay, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 into 3, ये -1 ऊपर, so it will be -1/6. So you should able to find out आपने सब्स्टिट्यूशन क्या किया है, कैसे करना है. Okay.